I will not say that how to apply, but where they are applied. We will see different type of probability distributions in real life. The first two of the first type are Bernoulli and binomial. We call probability distribution, or we call simply distribution. Second is the Poisson probability distribution, and then sometimes we calculate the binomial probabilities using Poisson distribution. So these are the topics for today lesson. Usually when we do physical classes, we usually were not able to complete more than 2 of them, or it is not possible in physical classes to explain things in a better way. So I think it is more informative, but you know, physical classes have a different flavor and impact, whereas online education is not that helpful, not that much, but somehow we are managing. Some common probability distributions. In practical life, there are hundreds of probability distributions. If you have studied physics, then particle physics, geophysics, space science physics, every different type of physics will have different probability distributions. Similarly, if you go for the business and economics, like stock, if you are a broker, or if somebody is a broker in the stock market, or somebody is interested in stock market returns, how to invest in stock markets, how to do business, then there is a different type of statistics models, probability distributions behind it. If somebody want to work in natural language processing, in BSCS, you will have a course module in 4th year, 8th semester, that is called natural language processing. You will see that there is a different type of statistical models which are used in linguistics. Linguistics includes Urdu language processing, or English language processing, or Urdu to English language processing, or any Urdu language to local language processing. So everything is called linguistics. And there is a topic that is called computational linguistics. Heavy use of statistics in this subject. Genomics. Probability distributions are used in genomics to see the different structures of viruses and bacteria, and how a virus structure changes, which is called variant. Now everybody know what is variant, like delta variant, alpha variant. So how the properties of a virus changes. Virus contains proteins. Proteins are the energy source for that virus, and they insert that protein into human proteins, so that human body deforms and have further बीमार हो जाते हैं. वायरस प्रोटीन की जैसे जो ह्यूमन के बॉडी में चेंजेस आती हैं, यानी यूँ समझ लीजिए कि ह्यूमन प्रोटीन की बजाय वो वायरस प्रोटीन पे चला जाता है, और वायरस प्रोटीन फिर अपनी कमांड्स देता है ह्यूमन को, ह्यूमन स्ट्रक्चर्स को, कि वो उसको फॉलो करें. ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी है, डेंजरस भी है सब्जेक्ट. इसके ब्रांचेस निकलती हैं. सपोज वायरोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ दिस सब्जेक्ट. This is machine learning. You know, machine learning is a part of artificial intelligence. तो ये बुक जो है ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की है, बहुत अच्छी. अभी नहीं पढ़ना है, ये तो शायद 3rd ईयर 4th ईयर में आएगा. लेकिन इन सब के पीछे जो स्टैटिस्टिक्स यूज हो रही होती है, उसके फंडामेंटल्स हम इस मॉड्यूल में इस कोर्स में कवर कर रहे हैं. So I just put some of the books examples. You see, they are all about statistics, how to use statistics in various fields. But the problem is we are not here for a whole year. We have few weeks to cover all these things and many other things. So we will just only focus only few most common probability distributions. We will not cover everything. We have only limited. We have 3 lessons to cover 4-5 distributions. लेकिन दिखाने का पर्पस ये था कि ये देखें कि कहाँ कहाँ पे स्टैटिस्टिक्स जो है वो यूज हो. प्रोग्रामिंग तो कंपलसरी एक एलिमेंट होता है. प्रोग्रामिंग तो आपको आना ही है, आना ही चाहिए. अब आगे जो भी आप जिस लैंग्वेज में भी एक्सपर्टीज करें, प्रोग्रामिंग होगी, और फिर ये नॉलेज डोमेन्स हैं, इनको मिला के फिर काम करना होता है. ओके, सम इम्पॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन. The most common
are binomial distribution and Poisson distribution. Some less common distributions are geometric, like geometric is the same as your first year geometric series. Geometric series and geometric series was just numbers, and geometric probability distribution will be about probability. Similar concept है, लेकिन यहाँ पे ये probability को handle कर रहे हैं और वहाँ पे वो numbers को. Continuous data, if we have continuous data, then we will have continuous probability distribution. One of them is uniform, then second is exponential. Exponential distribution भी आप पढ़कर आए हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स के अंदर, जहाँ पे हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जो फॉर्मूला था वो इस फंक्शन से निकला है, एक्सपोनेंशियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से ड्राइव हुआ है. तो you were given fundamentals of some of these concepts in your first year and second year last years, लेकिन अब जो है उसको हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं. Oh, yeah, normal distribution is the spine of statistical analysis. Spine जैसे बैकबोन होती है, तो इसी तरीके से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्पाइन है पूरी स्टैटिस्टिक्स की फील्ड की. तो ये कुछ हैं डिस्ट्रीब्यूशंस, वरना तो इसको काउंट करें तो अनलिमिटेड. Bernoulli probability distribution and binomial probability distribution. इसमें एक लिमिटेशन ये होती है कि हर, आज क्या कोई प्रेजेंट, there are only 28 people in the class. आज लोगों का दिल नहीं चाह रहा क्लास लेने का. एनीवे, मैंने पहला जो ऑनलाइन कोर्स किया था वो किया था आज से 10 साल 11 साल पहले, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑक्सफोर्ड नहीं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पहला कोर्स करवाया था दुनिया में. तो ये तो अब ऐसे ही चलेगा, आप चाहे इसको एक्सेप्ट करें ना करें, लेकिन चेंजेस आएंगी दुनिया में और आ चुकी, तो नई चीज़ों को अडॉप्ट करें. ओके, बर्नौली एंड बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस. हर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ अपने अजम्पशंस होते हैं, उन अजम्पशंस को या उन रूल्स को हमें फॉलो करना होगा ताकि वो हम समझ सकें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या करते हैं. तो इन केस ऑफ बर्नौली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन we have only one trial. One trial means, for example, you have one coin and you toss the coin one time, or you have any experiment where there are only two possible outcomes, either a success or failure, and the experiment is repeated only one time. You are not repeating the experiment more than one time. सबसे अच्छी जो कॉमन एग्जाम्पल है वो कॉइन टॉसिंग की एग्जाम्पल होती है, जिसमें हम कहते हैं कि भाई वी हैव ओनली वन कॉइन एंड वी टॉस द कॉइन, आइदर वी हैव अ सक्सेस, सपोज हेड इज अवर सक्सेस, और a tail is suppose a failure. Tail stands for not having head, so either we will have a head or we will not have a head on a single coin tossing experiment. Then we assume that the probability of success is represented by P and the probability of not having success, say failure, is represented by Q, such that only either you will have a success or there will be a failure. So that is P plus Q. So P or Q. And then we assume that probability of success plus probability of failure equals 1. So this is probability का टॉपिक कवर नहीं हुआ. कल मेरी मैडम साइमा अशरफ, यस मैडम साइमा अशरफ से बात हुई और उन्होंने ये कहा कि जो है हम ये कवर कर लेंगे. तो वो मैडम जो है वो आपके CR से कांटेक्ट कर लेंगी और आपको प्रोबेबिलिटी के फंडामेंटल पढ़ा देंगे. मैं अपना टॉपिक करता रहूँगा क्योंकि वो डेफिशिएंसी, इसको कहते हैं डेफिशिएंसी, वो डेफिशिएंसी कवर कर दें. उन्होंने अपना अच्छा वैलिड रीजन दिया और उसकी वजह से कैन डू इट इजीली. Okay, so these are the examples. First one, either a head or a tail, such that sum of probability equals 1. आपको तो probability का fundamental concept ये भी है
कि प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। जैसे एक फुटबॉल मैच है, या तो वो विनर होंगे, एक टीम विनर हो जाएगी, या वो टीम लूज़र हो जाएगी, या फिर वो मैच जो है वो ड्रॉ करेगी। तो फुटबॉल मैच के अंदर या क्रिकेट मैच के अंदर 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, तो उसको हम ट्राइनोमियल कहते हैं। हम पढ़ रहे हैं बर्नौली या बायनोमियल। बाई माने 2, देयर आर ओनली 2 पॉसिबल आउटकम्स। So, in the networks and network security, this is called DOS attack, denial of service attack on a computer. So, suppose either there is an attack on your computer or there is no attack on your computer. So, either there will be attack or no attack. So, sum of probabilities equals 1. That means there, जब हम ये कहते हैं कि 2 इवेंट की सम ऑफ प्रोबेबिलिटी 1 के बराबर है, इसका मतलब इसके अंदर कोई तीसरा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। जैसे यहाँ एग्जांपल में आइदर देयर विल बी अटैक, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, और देयर विल बी नो डिनायल ऑफ सर्विस अटैक। इसके अलावा तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। इसी वजह से देयर द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू ओके, पेशेंट इज डिजीज्ड और नॉट डिजीज्ड। I mean, if patient is diseased, suppose ये failure है, patient is not diseased is a success. तो यहाँ भी आप देखें, या तो success आएगी या फिर failure आएगा. There is no third option in this experiment. So these are also examples of Bernoulli experiments and types of Bernoulli probability distribution. किसी को कोई confusion या कोई question पूछना है तो बता दीजिए. Let me know. सर फिफ्थ पॉइंट में आखिर में 1 is equal to probability of success टाइपो है या फिर आखिर में? थैंक यू। सक्सेस, अच्छा ये वाला, ये कहलाता है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस आपको याद है मैट्रिक में आपने पढ़ा था यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है ऐसा सेट जिसके अंदर सारे अदर सबसेट्स जो होते हैं वो इंक्लूडेड होते हैं। सैंपल स्पेस भी वही चीज है। सैंपल स्पेस इज सेम लाइक यूनिवर्सल सेट। बस फर्क क्या है कि जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं तो हम उसको सैंपल स्पेस कहते हैं, और जब हम सेट्स पढ़ते हैं तो उसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। ये फर्क है। अच्छा, होता ये है यूनिवर्सल सेट इज द सुपर सेट। सुपर सेट माने उसके अंदर सारे सेट्स होते हैं। इसी वजह से आप देखें कि अगर फेलियर होगा वो भी सैंपल स्पेस का हिस्सा है, और अगर सक्सेस होगी वो भी सैंपल स्पेस का हिस्सा होगी, यानी यूनिवर्सल सेट का हिस्सा होंगे। तो इसीलिए हम कहते हैं ये ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसमें या तो सक्सेस होगी या फिर फेलियर होगा। और अच्छी एग्जाम्पल नहीं दे रहा भाई, एक बच्चा जो है या तो पास होगा या फिर पास नहीं होगा, तो इसके अलावा कोई तीसरा ऑप्शन नहीं। ये वाली एग्जाम्पल जो है जैसे रियल लाइफ की, आप लोगों के रिजल्ट्स आना शुरू हो गए होंगे आई थिंक, मेरा ख्याल है। वहाँ पे तो क्या रूल होता था कि यूएसए का रूल है, यूएसए के अंदर प्रोफेसर्स को शायद 3 दिन का टाइम दिया जाता है रिजल्ट सबमिशन के लिए, तो 3 दिन के अंदर रिजल्ट सबमिट करता है। यूके के अंदर जो मैं जहाँ पे था वहाँ पर भी 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के अंदर, 1 हफ्ते से 10 दिन, क्योंकि 2 हफ्ते के बाद दूसरा सेमेस्टर शुरू हो जाता था, नेक्स्ट सेमेस्टर। तो 10 दिन के अंदर रिजल्ट दे के फाइनलाइज करके, तो कंप्लेन है तो वो एक कमेटी होती थी उसमें चला जाता था और वो कमेटी रिजॉल्व करती थी। तो इतना क्विकली जो है वो वहाँ पे, इस वजह से सेमेस्टर 3 होते हैं साल के, हमारे जो है वो 2। ओके, नेक्स्ट, Bernoulli distribution, how we represent it in an equation form. So suppose x be the random variable. Random variable लास्ट क्लास में हमने देखा, वेरिएबल एक ऐसी चीज होती है जो वेरी करती है, चेंज हो सकती है। रैंडम वेरिएबल, अगर कोई एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर मोर देन 1 पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो हम उसको कहते हैं रैंडम वेरिएबल। रैंडम एक्सपेरिमेंट के आउटपुट के लिए हम टर्म यूज कर रहे हैं रैंडम वेरिएबल, रैंडम एक्सपेरिमेंट के लिए। So success in the experiment, let x be the number of success, or simply let x represents the success. But the situation is in Bernoulli distribution, we only have one trial, like one coin tossing. So if it is head, we call it 1. If it is tail, we call it 0. And this is the mathematical form or equation form for the Bernoulli probability distribution. How it is working? P power x. So I am not driving it. P power x, q power 1 minus x. How it is working? So x can take value 0 or 1.
then if I put in this formula, if I put x equals 0, p power 0, q power 1 minus 0, so p power 0 will be 1 and q power 1 will be q. So when I put x equals 0, I am getting q. q का मतलब क्या है? फेल्योर. फेल्योर मतलब ये सॉरी फेल्योर मतलब नॉट सक्सेस. So 1 minus p means not success equals to failure. And when I put p x equals to 1, p power 1, q power 1 minus 1. So we have p power 1 is p and q power 0 is simply 1. So when I put x equals 1, I am getting p. So this is these two rows are the probability distribution in the table form for Bernoulli experiment. इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है तो बता दीजिए. So this is the equation form and this is the tabular form for Bernoulli probability distribution. Next stage is I want to find the mean and variance for Bernoulli distribution. In last class, we observed that if I multiply the x value with the corresponding probability values, then we can find the mean value. And if I multiply x square with the corresponding probabilities, that will give me expected x square. So simply 0 times q is 0. 0 times q is 0. 1 times p is p. And next level x square. X square का मतलब है 0 square times q, again 0, because 0 times anything is 0 except infinity. And 1 square times p is p. So you see, if I find sum of x px, x times px, I get p. And if I find sum x square px, still I am getting p. Same answer. Mean, expected x and expected x square, they have same answer. Therefore, from previous lesson, lesson 1, we saw that expectation x square minus expected x whole square, it is p minus p squared, p common, p times 1 minus p, and variance is p times. So in a Bernoulli experiment where there is only one trial, the mean value is p, the probability of success, and variance is the product of p and q. So this is the one of the most simple distributions. ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट हो जिसके अंदर सिर्फ एक ही ऑप्शन है, उसको हम कहते हैं बर्नौली एक्सपेरिमेंट. अब रियल लाइफ में है ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट आपकी साइंस में हो जिसमें सिर्फ एक ही चांस मिले और उसके बाद दोबारा चांस ना मिले, तो वो बर्नौली एक्सपेरिमेंट कहलाएगा, जिसके अंदर सिर्फ 2 ही चॉइसेस हो, यस और नो. बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो मुझे बता दीजिए, अदरवाइज आगे. All right. Next is binomial probability distribution. This is the same concept that you have studied in, I don't remember exactly, it was first year or second year. It was binomial theorem and binomial series. So in binomial theorem, binomial series, you remember, you have to expand a sequence NCX something, a plus b power n, something like that. Yeah, a plus b and a minus b power n. ज़्यादा साल हो गए तकरीबन, तो इसलिए याद नहीं. Okay, this is an extension of Bernoulli distribution. In Bernoulli distribution, we saw we have only one trial, but in case of binomial distribution, we have n independent trials. That means independent trials का मतलब क्या होता है कि, अच्छा पहले n का एक्सप्लेन करूँ. In last Bernoulli distribution, n equals to 1, then it is Bernoulli distribution. And if n equals to 2 or 3 or 4, then it is called binomial distribution. Example, for example, आपके पास एक कॉइन है और आपने उसको 3 टाइम्स टॉस किया. पहली दफा टॉस करें, हो सकता है हेड आ जाए या टेल आ जाए, यू डोंट नो, इट्स लक. फिर आपने क्या किया, उसी कॉइन को आपने जो भी आउटकम आया, सपोज कर लें हेड आ गया, आपने उसको नोट डाउन कर लिया. अब आप जब दूसरी दफा कॉइन को टॉस करेंगे, आपको इससे कोई काम नहीं,
आपको इससे कोई काम नहीं है कि भाई फर्स्ट टाइम में हेड था या सेकंड टेल था, एंड वो जो फर्स्ट टाइम हेड या टेल था उसका सेकंड ट्रायल के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। अगर पहले आउटकम का दूसरे आउटकम के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है, कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, तो उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट ट्रायल्स। एक एक ट्रायल का दूसरे ट्रायल से कोई रिलेशन ना हो। अच्छा, तीसरी चीज़, हाँ, और अगर हम उसको फिर हमारे पास सपोज़ करें टेल आ गया, हमने उसको नोट कर लिया। पहली दफ़ा में हेड आया, सेकंड टाइम में टेल आया, फिर हमने उसको तीसरी दफ़ा टॉस किया कॉइन को। जब हम कॉइन को थर्ड टाइम टॉस कर रहे हैं, वी डोंट वरी अबाउट व्हाट वाज़ द आउटकम, और वी देयर इज़ नो रिलेशन ऑफ द थर्ड एक्सपेरिमेंट विद द प्रीवियस 2 आउटकम्स। अब हो सकता है पहले में हेड आ जाए और सेकंड ट्रायल में टेल आ गया और थर्ड ट्रायल में हो सकता है दोबारा हेड आ जाए या हो सकता है टेल आ जाए, वी डोंट नो। लेकिन ये क्या मतलब हो गया कि जब भी हम कॉइन टॉसिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये कहलाता है इंडिपेंडेंट ट्रायल्स। वन ट्रायल हैज़ नो रिलेशन और नो कंसर्न विद द अदर ट्रायल्स। रियल लाइफ में ये मुश्किल होता है कि हम ये कह दें कि भाई हर चीज़ जो इंडिपेंडेंट नहीं है, सॉरी, हर चीज़ इंडिपेंडेंट है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक वायरस अटैक हो गया अभी हमारी दुनिया पे। इसमें क्या हुआ कि एक आदमी इन्फेक्टेड है, उसको बीमार होना या ना होने का लिंक जो है, उसके जो क्लोज़ रिलेटिव्स हैं या क्लोज़ सर्किल के जो लोग हैं, उनसे डायरेक्टली बनता है। कि ये मॉडलिंग मैथमेटिकल मॉडल है इसका। जितने ज़्यादा लोग करीब होते हैं, उतने ज़्यादा बीमारी फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पैंडेमिक स्प्रेड के जो मॉडल हैं। ये एक सब्जेक्ट है एपिडेमियोलॉजी, ये पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स है और उसमें ये मैथमेटिकल मॉडलिंग कुछ प्रोग्रामिंग करना पड़ती है, ये वहाँ से आया है। इन शॉर्ट, कि रियल लाइफ में हर जगह पे बायनोमियल का जो ये पहला assumption है that we assume n independent trials, this is not possible in reality, but we assume. If we don't assume this, then the model will be very very complex. ये मॉडल इस्तेमाल होता है रिस्क मैनेजमेंट में, स्टॉक एक्सचेंज प्राइसिंग एंड मॉडलिंग के अंदर, और बीमारी जैसे फैलती हैं, जैसे पाकिस्तान में लास्ट ईयर एक आया था चिकन के नाम पे, चिकन गोनिया या कुछ कुछ इस तरह का नाम था लास्ट ईयर, ये सब। तो ये जिस तरह के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं या जो बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट हैं, इसमें इंडिपेंडेंस का अजम्पशन नहीं होता। इस वजह से उसके जो मॉडल्स हैं वो इस तरह से इतने ईजी नहीं होते। बट ये फर्स्ट ईयर की क्लास है, तो हम यहाँ पे फंडामेंटल्स पढ़ रहे हैं और इसी फंडामेंटल्स की बेसिस पे ही एडवांस मॉडल्स। फॉर एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल है 15 टॉसेस ऑफ ए कॉइन, यू टॉस ए कॉइन फॉर 15 टाइम्स और 20 पेशेंट्स, यहाँ पे मसला हो गया। वी अज्यूम वन पेशेंट इज इंडिपेंडेंट इन सिम्टम्स और एनीथिंग with the other 19 or 18 patients. I mean, every patient is independent from other patients. ऐसा नहीं है कि एक पेशेंट को अगर कोई वायरल इन्फेक्शन है तो वो वायरल इन्फेक्शन दूसरे पेशेंट को ट्रांसफर हो जाए, नहीं। हम कहते हैं कि नहीं, इंडिपेंडेंट है। अगर ये ऐसा होता कि एक पेशेंट का आउटकम, यानी एक पेशेंट को अगर वायरल इन्फेक्शन हो गया और वो वायरल इन्फेक्शन दूसरे पेशेंट को ट्रांसफर हो गया, तो ये तो इंडिपेंडेंट नहीं होगा, उसको कह देंगे डिपेंडेंट है, एक दूसरे पे डिपेंड कर गए। और अगर वो डिपेंड कर गए तो फिर ये बायनोमियल एक्सपेरिमेंट नहीं होगा, ये कोई और एक्सपेरिमेंट होगा, कंडीशनल एक्सपेरिमेंट्स कहलाते हैं। और फॉर एग्जांपल 1000 पीपल सर्वेड, आर यू हैप्पी, आर यू सेटिस्फाइड विद द नया पाकिस्तान, और you were happy with the पुराना पाकिस्तान। So there are a lot of surveys, they see whether the people are happy in the last 3 years performance or they are not happy। क्योंकि पब्लिक ओपिनियन है तो हम इसको यहाँ पे लेक्चर में बोल सकते हैं। ओके, तो ये सब बायनोमियल एक्सपेरिमेंट्स की टाइप है। बायनोमियल आउटकम क्या हो सकती है? बाइनरी आउटकम्स, बाइनरी का मतलब कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, 0 और 1। आई मीन 0 मीन्स नो करंट और नो इन्फॉर्मेशन, एंड 1 मीन्स information flowing, success and failure. Same like Bernoulli, we say probability of success and probability of failure makes 1। तो ये assumption सेम वैसे ही है जैसे बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में थे। एक assumption और है इसके अंदर, ये बड़ा अजीब सा है, जो कि क्योंकि ये फंडामेंटल मॉडल है इसलिए हम ये बना है, आई थिंक आपका जो बूलियन अलजेब्रा है उससे पहले से बना हुआ है ये प्रोबेबिलिटी। ये 16th सेंचुरी या 17th सेंचुरी से आया है। बूलियन जो है वो 17th या 18th सेंचुरी में था। तो ये कॉन्सेप्ट्स पहले से मौजूद हैं और बूलियन ने इसको, बूलियन ही नाम था शायद, 0-1 का अलजेब्रा बनाया। उसने जो है उसी इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए
और नया बनाए जो डिजिटल लॉजिक पे चला गया। कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी फॉर ईच ऑब्जर्वेशन। अब आपकी एग्जांपल की आपको, अगर हम एक दफा कॉइन टॉस करें, हेड या टेल आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हम सपोज कर लें 50% चांस फॉर हेड एंड 50% चांस फॉर टेल, 0.5 जब हम सेकेंड टाइम टॉस करेंगे दोबारा वही बात हो गई, आइदर अ हेड और अ टेल। और तीसरी दफा टॉस करेंगे फिर अगेन वही होगा, आइदर अ हेड और अ टेल, और उनकी प्रोबेबिलिटी भी फिक्स रहेगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल इज द सेम ईच टाइम वी टॉस अ कॉइन, चेंज ही नहीं होती। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। अगर एक चीज जो है वो फर्स्ट टाइम अगर वो सक्सेस हो जाए तो सेकंड टाइम जरूरी नहीं है कि वो हो सकता है वो पहली सक्सेस या फेलियर से डिपेंडेंट हो। तो ये कुछ अजम्पशंस हैं जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं रियल लाइफ में, इससे आगे की चीजें हमें अप्लाई भी करना पड़ता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल फॉर ईच पेशेंट इज द सेम। ये भी अजीब सी बात है कि अगर एक पेशेंट का प्रोबेबिलिटी कोरोना वायरस से सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी अगर 80% है, then we assume all the patients in the experiment have the probability of 0.8 80%। ऐसा तो नहीं होता रियल लाइफ में। एक आदमी के बहुत सारे अदर फैक्टर्स हैं, उसकी मल्टी मोर्बिडिटी स्टैंड्स फॉर कि अगर उसको मल्टीपल डिजीजेस हैं उस पर डिपेंड करेगा, उसकी फैमिली डिजीज हिस्ट्री पे डिपेंड करेगा, उसकी अपनी पर्सनल हेल्थ पे, इम्यूनिटी पे डिपेंड करेगा। रियल लाइफ में जो है वो इन रियल लाइफ इट इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड। ओके, नाउ वी सी व्हाट इज सीक्वेंस। अब देखें ना, अगर मैंने एक कॉइन को 3 टाइम्स अगर टॉस किया, ऐसा भी हो सकता है फर्स्ट टाइम यू गेट हेड एंड देन टेल। इट इज आल्सो पॉसिबल हेड आ जाए फिर टेल आ जाए फिर हेड आ जाए। क्या हो गया, हेड 1 हेड 2 टेल 3, हेड 1 टेल 2 हेड 3, और टेल फर्स्ट हेड सेकंड एंड हेड थर्ड। देखने में तो तीनों बराबर ही है ना, लेकिन सीक्वेंस डिफरेंट है। सीक्वेंस क्यों बराबर डिफरेंट है? क्योंकि हेड हेड टेल एंड टेल हेड हेड। वी कैन से to get two heads and one tail, we have 3 different ways: head head tail, head tail head and tail head head। तो ये कहलाएंगे, ये 3 different ways हम किस तरह से यूज करें, हम इसको अभी डिस्कस करते हैं। how much time? किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है इस स्लाइड के अंदर तो बता दीजिए। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट स्लाइड। बहुत टाइम लगा इसको डिजाइन बनाते बनाते, काफी टाइपिंग में काफी टाइम लगता है, और लेकिन वन टाइम स्ट्रगल है। ओके, एग्जाम्पल, इट्स अ वेरी सिंपल, जस्ट फोकस ऑन इट। समझ लेंगे तो आपको बायनॉमियल पूरा कंप्लीट अंडरस्टैंड हो जाएगा। एग्जाम्पल, इन 3 coin tossing, otherwise tossing 3 coins at once, so they are same thing, either you toss a coin 3 times or you toss 3 coins at once. What will happen? We will have total 2 power 3 8 possible outcomes. I hope Madam Saima Ashraf will cover how we got 8. So this is combination and permutation related thing. I assume you have not studied in first year. So it is a way to find how many different ways we have. Combination permutation क्या करता है? How many different ways we have to do some experiment. अब for this experiment we have 2 power 3 or say 8 different possible outcomes. ये मैंने यहाँ लिख दिया। भाई अगर हम एक कॉइन को 3 दफा टॉस करेंगे तो ऐसा हो सकता है हेड 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 3 दफा हेड आ जाए, ऐसा हो सकता है हेड हेड टेल आ जाए, और हेड टेल हेड और टेल हेड हेड। You can observe there are 3 different ways to get 2 heads and 1 tail. Similarly, tail head tail, tail tail head and head tail tail. There are 3 different ways to obtain two tails and 1 head. अगर मैं ये लास्ट वन इज टेल टेल टेल, अगर मैं अज्यूम कर लूं कि एक हेड अपीयर होना हमारी सक्सेस है, हेड का अपीयर होना हमारी सक्सेस है, तो वी कैन से वी हैव 3 सक्सेसेस हियर and there is only 1 outcome showing 3 successes. We have 2 successes here and 1 failure. We have 1 success and 2 failure